بریک آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سندھ میں تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ سندھ میں سرکاری دفاتر کی 3 دن چھٹی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق صوبے بھر میں افطار پارٹیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے اور اقدامات۔ خواتین کو جائیداد اور وراثت میں طاقت دینے والا قانون منظور۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا اجلاس کے متعلق۔ جی ہاں، دیکھیں سندھ کابینہ نے جو کفایت شعاری پالیسی ہے اس کے تحت بڑے اہم فیصلے کیے ہیں۔ اس میں 16 مارچ سے 31 مارچ تک سندھ کے تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے، البتہ امتحانات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ سندھ کابینہ نے دفاتر میں جو ہے 3 دن کی چھٹی کر دی ہے، لیکن جمعے کے روز جو ملازمین ہوں گے سرکاری وہ اپنے گھروں پر سے کام کریں گے۔ پیٹرول کم کر دیا ہے، 50% کوٹا جو ہے صوبائی وزراء اور سرکاری افسران کا پیٹرول کا کم کر دیا ہے، جبکہ جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے بتایا گیا کہ 60% جو ہے یہ ٹرانسپورٹ اب نہیں چلے گی، صرف 40% جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو چلایا جائے گا۔ 3 ماہ کی تنخواہیں صوبائی وزراء اور مشیر جتنے بھی ہیں وہ 3 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں لیں گے، یہ بھی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 12 ارب روپے کی بچت کی جائے گی اس حوالے سے کہ جو پیٹرول کم کیا جا رہا ہے، پیٹرول کا جو کوٹا کم کیا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن کم کی جا رہی ہے، ملازمین کی جو ہے مدت اوقات کار جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے قومی بچت ہوگی۔ اور اس پہ سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے کفایت شعاری کے جو بھی فیصلے کیے ہیں سندھ کابینہ ان پر عمل کرے گی۔ ٹھیک ہے عاجز جمالی، آپ کا شکریہ، ساتھ ہی رہیے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے رکنی قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزماں، مرکزی رہنما مولا بخش چانڈیو سمیت متعدد رہنماؤں نے بلاول ہاؤس میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عاجز، ملاقاتوں کا احوال بتائیے گا۔ جی ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے یہاں پر بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور مختلف شعبہ جات کے مختلف رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ہیں مخدوم جمیل الزماں جو کہ روحانی پیشوا بھی ہیں سروری جماعت کے، انہوں نے ملاقات کی ہے بڑی تفصیلی، اور مٹیاری ڈسٹرکٹ اور حیدرآباد کے جو معاملات تھے اس حوالے سے پی پی چیئرمین کو آگاہی دی اور عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں مولا بخش چانڈیو، سابق سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور حیدرآباد کی جو صورتحال ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ لاڑکانہ کے سوشل ورکرز ہیں، ان کے ایک وفد نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے اور لاڑکانہ کے ترقیاتی معاملات اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے بات کی۔ اس طرح مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے آج پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ جی ٹھیک ہے عاجز جمالی، آپ کا شکریہ۔ آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کو لازمی قرار دینے کے عمل کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر اعجاز احمد کہتے ہیں حکومت کے اس اقدام سے غریب عوام کو سہولت ملے گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم۔ جی سر، کہ آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت صوبے میں تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ اقدام جو ہے جو شہری ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس وقت میں ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد جو کہ سینئر ایگزیکٹو ممبر ہیں آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے۔ ان سے جانتے ہیں اعجاز صاحب، اس تمام تر فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس کا فیصلہ تو خیر بہت اچھا ہے، کیونکہ روڈ پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا تھا نا تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے اس کے اخراجات کے حوالے سے نا۔ اس میں یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو 7 لاکھ روپے سے جو ہے نا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح جسم کا کوئی حصہ اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی بھی کیٹیگری ہے، کہیں 2 لاکھ روپے، کہیں 1.5 لاکھ روپے، کہیں 5 لاکھ روپے ہیں۔ تو یہ اقدام تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور میں عوام سے اپیل کروں گا کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ جو ایک اس معاشرے کے اندر جہاں زیادہ تر غریب طبقہ ہے اس کے لیے بڑا بینیفٹ ہے،
और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि हम भी इसके अंदर जो है ना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल, एजाज अहमद से हमारी गुफ्तगू हुई और इनका ये कहना है कि जो ये इकदाम उठाया गया है ये काबिल सत्ताइश इकदाम है, क्योंकि जैसे कि हमारे शहर में ट्रैफिक हादसा पेश आते हैं तो उसमें ना सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि लोग जख्मी भी होते हैं। तो जब ये एक्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है तो इसके ज़रिए से लोगों की जो है वो मदद हो सकेगी, उनको जो है वो इंश्योरेंस क्लेम करके उनको जो है वो आसानी जो है वो रकूम हासिल हो सकेगी जिससे वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो इनका कहना है कि इस एक्ट के हवाले से ये जिस हद तक ताउन इनका दरकार होगा ये हाजिर है ताउन करने के लिए। जी आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल फरवरी में तरसीलात ज़र में माहाना 5% कमी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर की तरसीलात वतन भेजी। जनवरी 26 में तरसीलात ज़र 3 अरब 46 करोड़ 40 लाख डॉलर रही थी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जय अशरफ, अपडेट कीजिए। जी देखा जाए बैनुल मुल्कीन पाकिस्तानियों ने जो फरवरी 26 में तरसीलात ज़र में माहाना 5% कमी हुई है, जबकि सालाना 5% का इजाफा हुआ है। फरवरी 26 में जो 3 अरब 28 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र आई हैं और यहाँ पे देखा जाए कि फरवरी 26 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र 70 करोड़ डॉलर के करीब जो हैं UAE से आई हैं, जो कि सऊदी अरब से पहले नंबर पर होता था। अब इस दफा फरवरी 26 में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आए, जो कि 68 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर रहे। बरतानिया से 53 करोड़ डॉलर, अमेरिका से 31 करोड़ 90 लाख डॉलर की तरसीलात आए हैं और यहाँ पे कह रहे हैं पाकिस्तान को जो करंट अकाउंट खसारे में सबसे अहम किरदार जो तरसीलात ज़र अदा कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़ हो गया। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ में बैठ गए। नौजवान और बुजुर्ग मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ़ कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शायान अली से, जो इस वक्त तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में मौजूद हैं। जी शायान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, माह रमज़ान जो है अपनी मोहब्बतें और रहमतें समेटते हुए जो है आखिरी अशरे में दाखिल होने को है और इसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि अब इत्तिकाफ़ में जो है बड़ी तादाद में तमाम तर वो मसाजिद शहर के जो है मुख्तलिफ इलाकों में बनाई गई है। वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि इत्तिकाफ़ में बैठने का सिलसिला जो जारी है और इस वक्त हम जो है तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में मौजूद हैं और मेरे साथ जो है मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? इत्तिकाफ़ एक ऐसी फजीलत है जिस पर हम देखते हैं कि साल भर इंतज़ार होता है, पर ये 10 रोज़ होते हैं जिस पर जो इत्तिकाफ़ में बैठते हैं और खुसूसी तौर पे जो इबादत का सिलसिला जारी रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि एतिकाफ़ तमाम अम्बिया और बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने का भी पूरा इतिकाफ़ किया, 20 दिन का भी किया, उम्मत की आसानी और सहूलत के लिए फिर जो है वो 10 दिन का छोड़ा ताकि हर एक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सके। इसकी बड़ी अहमियत है। हम देखिए, हम आज जिस दौर में बस रहे हैं, ख़ासकर ये मटीरियल वर्ल्ड है, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ सुबह शाम अपने दुनियादारी के धंधे और चक्कर में पड़े हुए हैं। वो जो रूहानी पुख्तगी, पाकीज़गी और फ़िक्री तहारत है और लोगों से कट कर बेगरज होना और सिर्फ अल्लाह के लिए उसकी तरफ मुतवज्जे होना कि आखिरत की तैयारी हो सके और इंसान का नफ्स जो है वो पाकीज़ा हो सके, उसके मौक़े आम ज़िंदगी में नहीं मिलते। इससे इंसान की शख्सियत का जो मुआशरती पहलू है वो इससे ग्रो करता है। तो गोया इस एक इवेंट से इंसान को ज़ाती शख्सी तौर पर वो पुख्तगी नसीब होती है और दूसरों के साथ बैठना उठना आता है, दूसरों के साथ मुआशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है इसका मौक़े मिलते हैं उसे सीखने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इत्तिकाफ़ जो है वो आखिरी अशरे में जैसे ही शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा फ़ायदा इससे जो है उठाया जाता है कि आखिरी अशरा जो है उनको खुसूसी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के तौर पर मिलता है, जिसके तहत जो यहाँ पर इत्तिकाफ़ में बैठते हैं और अल्लाह के करीब जो वो होने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, माह सयाम के बाबरकत अयाम में टीम यूनिटी की जानिब से नेकियां समेटने का तसलसल जारी है। रोज़ादारों के लिए 20वीं अफ्तार का एहतमाम किया गया। 6 साल से शराय फैसल FTC के करीब अफ्तार करवाते आ रहे हैं। बस जज्बा खिदमत इंसानियत और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर। जैसे कि माह सयाम की बाबरकत अयाम में नेकियां समेटने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मैं शारा फैसल के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ साल की तरह इस साल भी जो यूनिटी टीम है उनकी सरबरा और उनकी टीम पेश है। रोज़ादारों को इफ्तार जो है वो करवाया गया है 20वां रोज़ा। मेरे साथ अब्दुल्ला बदर साहब हैं। बताइएगा अब्दुल्ला भाई कि ये जज्बा है, हर साल कार खैर का काम करते हैं और क्या आगे चल के मजीद इसी तरह का खिदमत करते रहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यहाँ पे डेली की बुनियाद पे 1000 लोगों को अफ्तार करवा रहे हैं, जिसके अंदर बिठा के भी करवा रहे हैं और बॉक्सेस भी दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा है। उसके साथ हम लोगों ने अभी हरीपुर के
अंदर और इस्लामाबाद के अंदर अफ्तार शुरू करा दिया है, और कराची के अंदर हम लोग लियारी में और औरंगी में अफ्तार करवा रहे हैं। इंशाल्लाह कल से हम लोग औरंगी के अंदर अपनी सहरी भी शुरू करवा रहे हैं। जी, जैसा कि अब्दुल्ला बदर मेरे हमरा मौजूद थे, इनका कहना है कि कई सालों से इसी तरह ऐसी मरकजी शारे पे कार खैर का काम का सिलसिला जारी है और दीगर शहरों में भी इसका बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। साथ ही इनका कहना है कि लियारी और औरंगी टाउन में सहरी का भी जो है वो आने वाले रोज़ में आखिरी जो अशरा उसमें एहतमाम किया जाएगा, और इनका जज्बा यही है इन समेत पूरी टीम आगे चलकर भी इसी तरह जो खिदमत खल्क का काम है वो करती रहेगी। जी, गर्मी के बायस दिल और शुगर के मरीज भी परेशान। तिबी माहिरीन ने मरीजों को ठंडी जगह रहने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, जब अद्वियात भी वक्त पर इस्तेमाल करें, वरना मुख्तलिफ पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम ब्रंट से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। गुज़श्ता कई रोज़ से जारी गर्मी के बायस जहाँ पर दीगर अफराद मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर दिल और शुगर के मरीज़ भी मुतासर होने का ख़दशा पैदा हो चुका है। इस हवाले से माहिर इमराज़ क़ल्ब ने जो एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की, ख़ासतौर पे इस रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में भी बेहतर और साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करने की ख़ासतौर पर हिदायत की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इंस्टीट्यूट हार्ट डिजीज़ अस्पताल में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है माहिर इमराज़ क़ल्ब डॉक्टर साहब। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन साहब, सर क्या कहेंगे इस मौसम में किस तरह एहतियाती अपनाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम के तो अपने मामलात होते हैं, कहते लाख सही है चाँद सी सूरज जुल्फ़ों के कम अच्छे हैं। दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे हैं, तो दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। और गर्मी ज़ाहिर जिस तरह आम लोगों को लगती है, इस तरह शुगर दिल के मरीज़ों को गर्मी लगती है। मैं गर्मी के हवाले से तदाबीर तो यही कि इंसान को गर्मी से बचना चाहिए। इसके साथ में आम बात भी ज़रूर करूँगा कि जो लोग दिल के अगर मरीज़ नहीं भी हैं, तो इस गर्मी में जो मशरूबात हैं उनके ऊपर रश लग जाता है, तो ख़ास तौर पर मैं हिदायत करूँगा कि गन्ने के रस से बचें। शायद ये बात किसी को पसंद ना आए, देखें वो जो अनहाइजीनिक चीज़ें वहाँ पर हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी खास तौर जो यरकान के मरीज़ समझते हैं कि हमारा इलाज है, तो खुदा र उसको इलाज ना समझें, वहाँ से ये चीज़ फैल रही है। जो दिल के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, उन्हें वैसे ही पानी कम बताया जाता है, तो अगर बाहर निकलें गर्मी में उन्हें प्यास लगेगी, इस तरह से वो मशरूबात ही पीना शुरू करेंगे तो पानी की मिकदार ज़्यादा हुई तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो घर से ना निकलें या गर्मी से बचने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन साहब, जिनका कहना था कि इस मौसम में भी ख़ास तौर पे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो मशरूबात हैं उनको अगर इस्तेमाल भी करते हैं तो साफ़ सुथरी मशरूबात इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, मूसा फाउंडेशन की जानिब से मस्तकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। फाउंडेशन के चेयरमैन आसिफ मूसा के साहिबजादे हफीज़ मूसा कहते हैं, ख्वाहिश है कि वालिद की फाउंडेशन में एम्बुलेंस भी शामिल करूं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और राशन की तकसीम का सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से NGOs हों या फिर समाजी कारकुन, समाजी रहनुमा हों, वो राशन की तकसीम का सिलसिला जो है वो रमज़ान मुबारक में आम रोज़ की बनिस्बत जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। मूसा फाउंडेशन की बात की जाए तो मूसा फाउंडेशन भी आम दिनों के साथ साथ रमज़ान मुबारक में राशन की तकसीम का सिलसिला जो है वो डबल ट्रिपल कर देता है। अगर बात की जाए यंग जनरेशन की तो मूसा फाउंडेशन से हमारे साथ यंग वर्कर मौजूद हैं, हुज़ैफ़ा मूसा। इनसे बात करते हैं। हुज़ैफ़ा, ये बताओ, आजकल यंग जनरेशन में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वो समाजी खदमत में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। मूसा फाउंडेशन में आप क्या देखते हो कि मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है कि अगर आपके वालिद साहब काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप इस मूसा फाउंडेशन को आगे कहाँ देख रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वालिद साहब काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से हमने ये राशन और क्या कहते हैं इफ्तार दस्तरखान का सिलसिला शुरू रखा हुआ है। इंशाल्लाह आगे 20 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इस महीने रमज़ान में जो लोग मुश्किलात का सामना करते हैं राशन के हवाले से, उनके घरों तक उनकी इज़्ज़त नफ्स को बिना ठेस पहुंचा के हमने 5000 राशन तकसीम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कर रहे हैं। तो आपने मुझसे पूछा कि मैं आगे क्या करूंगा, तो इंशाल्लाह इस 5000 को हम इंशाल्लाह 50,000 पे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह और आगे भी लेके जाएंगे। और वो राशन को और क्या कहते हैं इफ्तार दस्तरखान का सिलसिला, उसको भी इंशाल्लाह हम और बढ़ाएंगे और भी चीज़ें शुरू करेंगे इंशाल्लाह, एम्बुलेंसेस वगैरह। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये बताओ कि कराची इतनी बड़ी आबादी है, राशन इफ्तार दस्तरखान, इसके अलावा आप क्या देखते हो कि कराची में आपको लगता है कि हमारी फाउंडेशन इस चीज़ का हिस्सा बने? कराची में काफ़ी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, तो हमारी फाउंडेशन जैसे कि सबसे जो मेन रीज़न है ना वो एम्बुलेंसेस का है और ट्रैफिक का है। तो हमारी फाउंडेशन इंशाल्लाह इस चीज़ में आगे हिस्सा लेगी कि एम्बुलेंसेस वगैरह और ट्रैफिक वगैरह इसमें ज़रूर इंशाल्लाह हिस्सा लेगी।
बिल्कुल हुज़ैफ़ा मूसा मौजूद है, यंग जनरेशन है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों से जो है वो जो यंगेस्ट वर्कर हैं वो सामने आते हैं कि किस तरीके से जो है वो काम किया जाए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आगे ले जाया जाए, जिसमें हुज़ैफ़ा जो है वो नज़र आते हैं कि एम्बुलेंसेज अगर वो मुस्तक़बिल में आगे बढ़ेंगे तो मूसा फाउंडेशन में एम्बुलेंसेज जो है वो ज़रूर ऐड करेंगे। जी।